Now today let's start with chapter number 3, air and water. In this chapter we will study about composition of atmosphere. We have 78% nitrogen, 21% oxygen and 0.03% other gases. So I will tell you composition of the atmosphere. Then I will tell the structure. We have different layer, thermosphere, mesosphere, stratosphere, ionosphere or exosphere. These are the different layer of atmosphere. Now weather and climate. Weather, what happens in weather? There is day-to-day changes and climate remains same for the many longer time. Temperature, then I will tell you about air pressure or atmospheric pressure. Then wind, moisture, water, waves, ocean's current and your tides. Now let's start with the chapter. First of all, let's see what is atmosphere. Atmosphere क्या है? The earth is surrounded by invisible envelope of mixture of gases up to a certain height. What it is known as? It is known as atmosphere. It is an integral and important sphere of natural environment. ये क्या है? Integral है और एक important sphere है आपके natural environment का. Right? So physical condition जो होती है वो rapidly change करती रहती है due to incoming solar radiation. Like temperature, air pressure, humidity and other atmospheric condition, it keeps on changing due to solar energy. क्या होता है? इन सब चीज़ों की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है? ये जो आपकी चीज़ें हैं ये चेंज होती रहती हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द सोलर एनर्जी जो हम किससे रिसीव करते हैं? सन से. दीज चेंजेस में अकर इवन अ फ्यूअर. Now let's see the composition of air, atmosphere. Like I have told you, we have nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon and other gases. Nitrogen 78.1%, oxygen 20.9%, carbon dioxide 0.03%, argon 0.93% और other gases 0.04%. Right? Now, air also contains dust particles, smoke, soot, ash, pollen, sea salt suspended in it. It also contains water vapor. The amount of various components vary from place to place. जो ये amount of components हैं, ये क्या करते हैं? Vary करते हैं from place to. Now we have nitrogen. If we talk about nitrogen, जो सबसे ज़्यादा part cover करता है वो आपका nitrogen करता है. कितना है? 78.1%. So it avoids quick burning and when we inhale, we take some amount of nitrogen into the lungs and just exhale it. देखो ये एक तो क्विक बर्निंग में हेल्प करता है. नाइट्रोजन किस में हेल्प करता है? क्विक बर्निंग में. देन जैसे आप इसको इनहेल करते हो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को, एकदम से आप क्या कर देते हो? एक्सहेल कर देते हो. सो प्लांट्स एंड एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स एवरीवन दे ऑल नीड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. इस किस फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन को? प्रोटीन के फॉर्म में रहते हैं फॉर द सर्वाइवल. सो बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. लेकिन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते बिकॉज सम बैक्टीरिया दोज हु आर लिविंग इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स दे टेक इन द nitrogen from the air and how they change it into a some or other form so that जो plants है वो भी इसका यूज करते हैं. animals और human beings plants तो हमारे इस फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं? नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में ले रहे हैं. ठीक है. और ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन है फ्रॉम द नाइट्रोजन. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ये सेकेंड मोस्ट प्लांटिफुल गैस है. क्या है ये? सेकेंड मोस्ट प्लांटिफुल गैस है. ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों, ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. और ऑक्सीजन इट इज एब्जॉर्ब्ड by their blood and burns their food in the cells very slowly. और हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी. ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और ग्रीन प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंटेंट है वो एयर में कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है. इफ वी कट ट्रीज देन द बैलेंस इज डिस्टर्ब. जब हम इन ट्रीज को काटते हैं तो जो ये बैलेंस होता है ये क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है. देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. ये एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो सर्वाइवल के लिए. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. देखो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं. किसके लिए? तो अपना फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए.
So the synthesis of carbon dioxide and water to make glucose in the presence of sunlight. इस process को क्या बोला जाता है? Photosynthesis. And human and animals are dependent on green plants for their food and oxygen for breathing. जो human है, animals हैं, दोनों किस पे depend है? Green plants पे. किसके लिए? Food के लिए और oxygen के लिए for breathing. देखो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कौन रिलीज करता है, ह्यूमन और एनिमल्स, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स एंड टू मेक अ बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. देखो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, ठीक है, रिलीज कर रहे हैं, तो और प्लांट्स क्या कर रहे हैं? उनको एब्जॉर्व कर रहे हैं फॉर मेकिंग फूड. वो क्या है? जितने प्लांट्स और जितने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं वो किसके इक्वल है? जितना प्लांट उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं. So with the advance of civilization and progress of industry, this balance is upset by burning of fuel, mostly coal and oil. By this burning, thousands or tons of carbon dioxide is added to the atmosphere. इस burning की वजह से जो tons of carbon dioxide है वो आपकी add होती है atmosphere में. Every day as a result, Earth's weather and climate is affected. जो Earth का weather है as well as जो climate है दोनों क्या हो रहा है? Effect हो रहे हैं. Now presence of carbon dioxide in air helps to keep earth warm at night. जो presence of carbon dioxide है air में वो help करता है किसमें? To keep the earth warm at night. और वो earth को कैसा रखता है? warm रखता है, गर्म रखता है night में. Like a greenhouse, a carbon dioxide in the atmosphere traps the heat radiated from the earth. जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है, जो कहाँ से हम रेडिएट करते हैं? फ्रॉम द अर्थ इन द नाइट. In this way, Earth remains warm at night. Otherwise, the world have been too cold to live in. इसी तरीके से आप देखते हैं कि अर्थ क्या करता है? वार्म रहता है नाइट पे, वरना तो हमेशा वो क्या रहेगा? ठंडा ही रहेगा. और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल ग्रीन हाउस गैस. जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है. Now, factory smoke and car fumes increase level of carbon dioxide in the atmosphere. The heat retain had increased the average temperature of the earth. और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग. जब अर्थ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है. और जैसे आपकी भाई फैक्ट्री से स्मोक आ रहा है उससे भी क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या कॉज होता है? ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस इशू है इन टूडेज वर्ल्ड. दिस rise in global temperature has caused glaciers on the mountains and ice sheet in polar region. It may result in the rising of sea level causing flood in the coastal area. In long run there will be drastic changes in climate of a place. जिससे क्या होगा? आपका एक्सटेंशन होगा कुछ प्लांट्स और एनिमल्स का. आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो सन हीट दे रहा है, मतलब आप देख रहे हैं आप प्लांट्स वगैरह खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, फिर ये क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? हमारे प्लांट्स ले रहे हैं. और वो कौन सा प्रोसेस वो कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं. और क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, O2 ऑक्सीजन देते हैं, और हम वो क्या करते हैं? लेते हैं ह्यूमन बींग्स और ब्रीथ करते हैं. नाउ एडवांटेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर. व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर? इट्स अ बैकबोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ये क्या है? बैकबोन है किसकी? लाइफ ऑन द अर्थ. Vital gases of animals and plants are available. जो vital gases आपके animals और plants they are available from atmosphere, which is responsible for existence of biosphere from the earth. जो किसके लिए responsible है? आपके existence of biosphere from the earth. Now occurrence of weather and climate. जो phenomena है आपका weather का, climate का, वो occur होता है कहाँ? Only in atmosphere. They influence lithosphere and hydrosphere, enabling different processes to continue through which life cycle is maintained. Next is maintaining balance of temperature on the earth. जब हम balance of temperature को अर्थ पे maintain करते हैं, जो atmosphere है वो किसकी तरह act करता है? Like greenhouse, and it allows the heat radiated by sun to reach the earth. और कुछ मेजर पोर्शन जो हीट है वो कौन रेडिएट करता है? आपका अर्थ रेडिएट करता है. एंड हैंस ड्यूरिंग इन विंटर एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट द एयर रिमेन्स वार्म. और फिर क्या होता है? कुछ टाइम बाद वो क्या होने लग जाती है? ठंडी होने लग जाती है. ठीक है, वो क्या होने लग जाती है? ठंडी होने लगती है. नेक्स्ट इज एक्टिंग लाइक अ शील्ड ऑन द अर्थ. ये किसकी तरह एक्ट करता है? किससे शील्ड हो अर्थ पे. Most of the meteors falling towards the earth get burned in the atmosphere. In the absence of atmosphere, meteors would hit the surface of the earth. और ये क्या हो सकता है? बहुत बार बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस भी हो सकता है.
ठीक है. नाउ सो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ लाइक अ शील्ड. तो हमारे अर्थ को कौन प्रोटेक्ट करता है? ये एटमॉस्फेयर जो होता है ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, जितनी भी यूवी रेज आ रही है जो स्किन प्रॉब्लम कॉज करती है, सो इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द, जो डायरेक्टली कमिंग रेज है वो पहले आपके एटमॉस्फेयर में, जो आपकी सन की जो रेज है जो डायरेक्टली आ रही है वो एटमॉस्फेयर उसको क्या करता है? पहले प्रोटेक्ट करता है. नाउ हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, गैसेज इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दे कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जिसे हम आयंस कहते हैं, जो रेडियो वेव्स को वापस भेजती है अर्थ पे, और किसमें हेल्प करती है? कम्युनिकेशन सिस्टम में. इट इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस फॉर रेडियो एंड टेलीविजन. ये बहुत यूजफुल प्रोसेस है आपके रेडियो के लिए भी और टेलीविजन के लिए. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है. जो आपका एटमॉस्फेयर है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर. इट कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 99 पार्ट इज मेड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो आपका 99% ऑफ पार्ट है वो आपका ऑक्सीजन और किसका बना है? नाइट्रोजन का. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वी हैव डिफरेंट लेयर, वी हैव ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ठीक है, ये डेंसिटी और प्रेशर को आपको बताती है डिफरेंट. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर. द ट्रोपोस्फेयर इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये कहाँ से एक्सटेंड करती है? हाइट ऑफ 8 किलोमीटर अबव द पोल्स एंड 80 किलोमीटर अबव द इक्वेटर. इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर. सारे वेदर फिनोमिनाज यहीं पे ही होते हैं, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो फॉग हो या हेल स्टॉर्म. वाई? बिकॉज जो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ट्रोपोस्फेयर पे. ऑल लाइफ फॉर्म, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स लिव इन दिस लेयर. एंड टेम्परेचर और एयर प्रेशर, ये क्या होता है? ये गोज ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट. टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड एट रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर और ascent above sea level. This is why it is cooler at the top of mountain and than the bottom. Because of low air pressure, mountaineers and airline passengers use oxygen mask at high latitude. आपने देखा होगा जो एयर पैसेंजर्स होते हैं तो वो मास्क का यूज करते हैं जब वो हाई एल्टीट्यूड का होता है. नाउ वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, दिस लेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल. जो टेम्परेचर होता है लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज मोस्टली कांस्टेंट. टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है. यहाँ पे जो आपकी एयर होती है जनरली थिन, कोल्ड और ड्राई होती है और स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं. व्हाट आर दे नोन एज? जेट स्ट्रीम्स. They blow horizontally from west to east. The stratosphere is almost free from various weather phenomena and lower part is completely free from. Stratosphere में weather phenomena नहीं होते और जो लोअर वाला पार्ट होता है वो तो बिल्कुल ही फ्री होता है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर. ये वाली जो लेयर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, ये सूटेबल होती है जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह एयरक्राफ्ट चलते हैं ना उसके लिए. नेक्स्ट इज ओजोनोस्फेयर. द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर हैज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन और इसको ओजोनोस्फेयर कहते हैं. ओजोन क्या एब्जॉर्व करता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है. देन वी हैव मेसोस्फेयर जो लाई करता है जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. ये एक्सटेंड करता है अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर और जो मीटियोर्स हैं वो बर्न करते हैं एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. और जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है अगेन विद द हाइट और वो फॉल करता है एट अ लो एज -100 डिग्री सेल्सियस. ये जो दो टेम्परेचर है ये फ्रीज करते हैं वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है इस लेयर में. एंड द एंड पार्ट ऑफ मेसोस्फेयर इज कॉल्ड मेसोपॉज और जो एंड पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? मीसोपॉज. देन वी हैव थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर begins from mesopause. In the lower layer of the thermosphere, molecules of gases are electrically charged. जो molecules है gases के वो electrically charged है जिन्हें हम ions कहते हैं. ये जो molecules है they have formed their own layer जिसको हम ionosphere कहते हैं. ये extend करता है 80 to 400 किलोमीटर. Right? So जो radio waves है they are transmitted from the earth, are reflected back and this helps in long distance wireless communication. ये लॉन्ग डिस्टेंस जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें हमारी हेल्प करता है. तो वो कौन सी लेयर होती है आपकी? थर्मोस्फेयर. दीज आर द डिफरेंट. ये आपकी ट्रोपोस्फेयर जो 20 किलोमीटर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर जहाँ पे मीटियोर्स बर्न करते हैं, थर्मोस्फेयर एंड दिस इज
एक्सोस्फेयर, जो लास्ट लेयर होती है। नाउ वी हैव एक्सोस्फेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसमें जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। एक तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, वेरी थिन है, ये मर्ज करते हैं इनटू स्पेस में, इट डज नॉट हैव एनी डिफाइंड बॉर्डर। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन ये फ्लोट करते हैं स्पेस में, एंड जो आउटर फिंगर प्रोजेक्शन बनते हैं, और इसकी जो हाइट है वो आपकी 500 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर है। ठीक है, लो लेवल सैटेलाइट ऑर्बिट विद दिस लेयर, टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली, जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, जिसका टेम्परेचर है वो रेंज करता है 300 डिग्री सेल्सियस टू 1650 डिग्री सेल्सियस तक। जो आपके अल बालकाशी हैं, ये अरब जोग्राफर है, ये कलेक्ट क्लाइमेटिक डाटा। ये अरब क्रैबल थे, इन्होंने क्लाइमेटिक एटलस बनाई थी आपके पूरे वर्ल्ड की, राइट। देन वी हैव वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑल्सो हैड एन इफेक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट, आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड आवर लाइफस्टाइल। देखो, वेदर और क्लाइमेट, इनका इफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और हमारी लाइफस्टाइल में। जो अगर आपको ये समझना है वेदर और क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, so you must learn about basic element like isolation, temperature, atmospheric pressure, humidity, winds and sky condition. इनको क्या बोला जाता है, ये कुछ आपके एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट की। Then we have weather. It is the state of atmospheric condition like temperature, humidity, wind, rainfall. All of these atmospheric condition are collectively known as weather. ये सारे atmospheric condition को हम collectively क्या कहते हैं, weather. Therefore, weather can be sunny, windy, rainy, cloudy और snowy. Weather क्या हो सकती है, sunny भी हो सकती है, windy भी हो सकती है, rainy भी हो सकती है, cloudy भी हो सकती है और snowy भी हो सकती है। Now climate. What is climate? It is the average weather condition of an area over a long period of time. ये जनरली जो इसका एवरेज है उसको हम 35 years और more with. The difference between वेदर एंड क्लाइमेट, आप एक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था जो वेदर है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के रहती है, डे टू डे चेंज करती है, सनी होती है, कभी रेनी होती है, कभी क्लाउडी होती है, कभी डस्टी होती है। बट जो क्लाइमेट है वो चेंज नहीं होता, इट रिमेन सेम फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ वेदर एंड क्लाइमेट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन आवर डेली लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिस्टमैटिक स्टडी जो है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर की, इट इज वेरी नेसेसरी। नाउ वी हैव एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। देखो, जो वेदर को पढ़ता है, जो स्टडी करता है वेदर को, उसके इन्वायरमेंट को, ही इज नोन एज मेट्रियोलॉजिस्ट। एंड और इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, वेदर और क्लाइमेट की स्टडी को मेट्रियोलॉजी, राइट। वेदर क्या होती है, आपकी आर टू आर डे टू डे चेंज करती है, और जो क्लाइमेट है वो डिफाइंड है एज द सम ऑफ वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे, एंड द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ वेदर कंडीशन अबाउट अ लार्ज एरिया। जब लार्ज एरिया में आपका सेम ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। नाउ वी हियर वेदर फोरकास्ट ऑन रेडियोज और रोड अबाउट देम इन न्यूज़पेपर्स एंड व्हाट वेदर इज लाइकली टू रिमेन ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब देखो, वेदर फोरकास्टिंग करी जाती है न्यूज़पेपर्स में, टीवीज में, आपको बताया जाता है कि कैसी वेदर रहेगी। नाउ तो यू कैन ऑल्सो सी इन योर मोबाइल फोन्स। सो a weather station is a place where weather elements is collected regularly and continuously. Ship balloons, satellites, they are used for collection of weather. देखो, जो आपका वेदर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे आपका डेली जो टेम्परेचर, क्या कंडीशन रहेगी वेदर की, वो सब देखा जाता है। और इसमें शिप बैलून्स का यूज़ करा जाता है और आपकी सैटेलाइट्स का यूज़ करा जाता है। और कौन करता है इसको, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। Now here the difference is given, difference between weather and climate. मैंने आपको बताया वेदर शॉर्ट रन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और क्लाइमेट एक एग्रीगेट डे टू डे वेदर कंडीशन है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है। ये एक पर्टिकुलर स्टेशन के लिए, लार्ज एरिया के लिए, ठीक है। इट में चेंज एट वेरी शॉर्ट इंटरवल और ये लेस अनचेंज रहता है और रिमेन रहता है सेम फॉर द मोर इंटरवल। Now, instrument to measure weather. We have many instruments through which we can measure our weather. Like we have thermosphere. Thermosphere, it measures the temperature of the atmosphere. ये क्या measure करता है, temperature of atmosphere. It is also used to measure the body temperature of human. ये जो क्या करता है, body temperature, human beings की body temperature को भी measure करता है। स्टेवेंसन स्क्रीन, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है थर्मामीटर को फ्रॉम डायरेक्ट सनरेज।
6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, ये हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को दिखाता है. देन वी हैव बैरोमीटर, इट इज यूज टू मेजर द एयर प्रेशर. बैरोमीटर किसको मेजर करता है? एयर प्रेशर को. नाउ विंड वेन, it has to find wind directions. Now anemometer, it is used to measure the spread of wind. Anemometer जो speed measure करता है wind की. Rain gauge, it measures rainfall. Hyetograph, it provides continuous record of rainfall. ये continuous जो record होता है rainfall को उसको बताता. Now टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री में रिकॉर्ड होता है. आफ्टर द साइंटिस्ट बाय हुम दीज स्केल्स वर डिस्कवर्ड. सेल्सियस स्केल जो है ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज स्केल है ऑफ टेम्परेचर, राइट. द सेम स्केल इज यूज इन आवर कंट्री. इट इज आवर डेसिमल स्केल विद वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100. 0 क्या होता है? इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट. देन द थर्मामीटर्स को हम शेड में रखते हैं. एंड फॉर पर्पस वुडन ब्लॉक्स ऑल्सो स्टेवन स्क्रीन विथ स्टिल्स ऑन ऑल साइड टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ एयर. थर्मो ये आपको कंटिन्यूस रिकॉर्ड, अगर आपको टेम्परेचर देखना है, बोलते हैं हम फीवर हो जाता है तो हम उसको नापते हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्या बदलता है आपको कितना फीवर. ये स्टडी होता है. नाउ वी हैव प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर. जो भी फोर्स एक्सर्ट करी जा रही है बाय द वर्टिकल कॉलम ऑफ एन एयर पर यूनिट ऑफ एरिया, इसको क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर इज रीड इन सेंटीमीटर्स और इंचेस ऑफ मर्करी, अ ट्रू मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम. ठीक है, क्या करता है? मेजर करता है. ठीक है, ये सेंटीमीटर और इंचेस में मेजर करता है. देन वी हैव एनीरियोट बैरोमीटर. Nowadays, aneroid barometer is used for measuring atmospheric pressure. It measures the force exerted by air on a metallic plate. जो भी force exert हुई है air ने by a metallic plate, it contains partially actuated metal chambers with spring inside to prevent the chambers from collapsing. ये prevent करता है कि जो chamber है वो collapse ना हो. Our needle is attached to the spring विच मूव्स अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ प्रेशर. ठीक है, जो नीडल है वो अपनी जगह को, अपनी प्लेस को चेंज करती है, जो स्प्रिंग अटैच होते हैं जैसे जैसे आपका क्या होता है प्रेशर में चेंज आता है. नाउ वी हैव एनेरॉइड बैरोमीटर. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग अल्टीमीटर विच इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स. और जो अल्टीमीटर है वो आपको हाइट ऑफ द प्लेन बताता है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. द बैरोग्राफ ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ प्रेशर इज एन अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसका आप यूज करते हो. वी हैव एनेरॉइड बैरोमीटर. नाउ वी हैव एनीमोमीटर, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग विंड वेलोसिटीज कंटिन्यूसली आर फॉर एनीमोग्राफ. वन कैन नॉट गेट सम आइडिया अबाउट द विंड वेलोसिटी, तो हम किसके थ्रू करते हैं? एनीमोमीटर के थ्रू. देन वी हैव टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस in the air. It is known as temperature. We measure in Celsius or Fahrenheit. There may be slightly, it may differ slightly inside or outside the room. The temperature of the atmosphere at place changes between day and night. जो क्या होता है वो change करता है between day and night. The sun exists most of its energy as heat rays called solar radiation. The earth receives only a little fraction of this energy. The earth atmosphere allow only a small part of this incoming solar radiation to reach the ground. The small part of solar radiation is known as isolation. इसको क्या बोला जाता है? Isolation बोला जाता है. Now the atmosphere is heated more by terrestrial. देखो जो terrestrial radiation होते हैं वो जो incoming radiation होते हैं terrestrial radiation, ठीक है, तो आप में उसमें आप देखेंगे कि वो लैंड को एकदम हीट कर देती है. Then by insulation. This helps to keep the earth warm at night. During night there is no receipt of insulation from the sun. Half of the earth, जो आपका अर्थ होता है, the earth is kept warm by water vapor and carbon dioxide in air during night. So there is lower temperature at night. जो temperature होता है night में वो क्या होता है? lower होता है. The rays of sun falls directly at the equator. Heating is more than slanting rays on the wall. देखो आप देखोगे कि अर्थ पोल्स पे कम ठंडा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, क्योंकि जो इक्वेटर पे है जो सनरेज है वो डायरेक्टली पड़ रही है, राइट. इक्वेटर पे जो सनरेज हो रही है वो डायरेक्टली पड़ रही है, ठीक है, और जो पोल्स पे है जो सनरेज पड़ती है वो थोड़ी स्लैंटिंग पड़ती है.
So the amount of isolation decreases from the equator towards the pole and the temperature decreases in the same manner. और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है सेम मैनर में एंड टेम्परेचर इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल अदर फैक्टर. ये एक कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम जो अदर फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है. नाउ टेम्परेचर ऑफ एयर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर and a special thermometer has been designed which measure the maximum temperature during day and minimum temperature at night. एक तरीके का स्पेशल थर्मोमीटर हमने डिज़ाइन करा है जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर डे में, मिनिमम टेम्परेचर नाइट में मेजर करता है, राइट. सो द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज रेंज ऑफ टेम्परेचर. देखो इफ यू गो टू नियर सी कोस्ट, आप सी कोस्ट के आसपास गए तो जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो लोअर होगा एज कंपेयर टू व्हेन यू आर अवे फ्रॉम सी. जब आप सी से दूर हो उससे अगर हम कंपेयर करें तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, लोअर होगा. दिस इज बिकॉज लैंड हीट्स अप एंड कूल्स मोर क्विकली देन वाटर बॉडी. दिस इज द रीजन वाई इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर इन दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. और जो प्लेसेस होते हैं आपके नियर द सी, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. जो टेम्परेचर है आपका प्लेसेस का वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि उसका जो डिस्टेंस है इक्वेटर से वो कितना है, उसकी हाइट कितनी है सी लेवल से, उसका स्लोप क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है सी से, डायरेक्शन क्या है विंड से, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या है, ओशन करंट क्या है, वेजिटेशन कवर क्या है, स्लोप एक्सपोज टू सन रिसीव मोर रेडिएशन, और वो क्या रिसीव करता है, मोर रेडिएशन. नाउ एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो air is a mixture of gases and like other gases, other substances, air has weight. The air exerts its weight as pressure on the earth's surface. The weight of the air unit on area on the earth is called atmospheric pressure. जो weight है air का on an unit area of the earth उसको क्या बोला जाता है, atmospheric pressure. The instrument used to measure atmospheric pressure को जो measure करता है वो क्या होता है, barometer. Right? And the unit in which air pressure is measured उसको क्या कहा जाता है, millibars. What it is called, millibars. Now the pressure of the atmosphere, जो pressure है atmosphere का वो maximum है at sea level and decreases with the increase in altitude. अब वो क्या करता है, decrease करता है जैसे जैसे आपका altitude increase करता है. जो normal atmospheric pressure है sea level का वो 1013 point है, राइट. एंड द एयर विच रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस वो एक्सटेंड करती है बीइंग हीटेड और वो क्या बन जाती है, लाइट बन जाती है. जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ राइज करता है तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, राइट. और जैसे जैसे कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है और जैसे सेटल डाउन करती है तो वो क्या बना रही है, हाई प्रेशर बना रही है. क्या बना रही है, हाई प्रेशर बना रही है. नाउ वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट्स. लेट्स स्टडी अबाउट द वर्ल्ड सम प्रेशर बेल्ट्स. ये एक परमानेंट पैटर्न बनाती है हाई और लो का प्रेशर. मेजर बेल्ट्स ऑन द अर्थ जो आपके हीट जोन्स ऑफ द अर्थ में, प्रेशर बेल्ट्स फॉर्म ड्यू टू टेम्परेचर आर फाउंड एट इक्वेटर एंड पोल्स. मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर एज अ फर्स्ट इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो आपके इक्वेटर पे होगी. दिस इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. अब देखो नॉर्थ से ट्रेड विंड आ रही है, क्या आ रही है, नॉर्थ से ट्रेड विंड आ रही है, ठीक है. रात की साउथ से भी ट्रेड विंड आ रही है, ठीक है. ये यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे क्या बनाएगी, हाई प्रेशर बनाएगी. मैंने आपको बताया अगर नीचे की तरफ आती है तो हाई प्रेशर क्रिएट करती है, ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट करती है. तो यहाँ पे ये क्या करेगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल आपका हाई प्रेशर. अब मैंने आपको बताया था नीचे की तरफ आई तो लो प्रेशर क्रिएट करेगी, तो क्या है, सब पोलर लो प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर. देखो इधर से जा रही है ना, यहाँ से उठ रही है तो सब पोलर लो प्रेशर, और यहाँ से नीचे आ रही है तो क्या करेगी, हाई प्रेशर. यहाँ से नीचे आ रही है तो लो प्रेशर, यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे हाई प्रेशर. नाउ वी हैव, देखो जैसे जैसे ये राइज कर रही है ये क्या क्रिएट कर रही है, लो प्रेशर बेड क्रिएट कर रही है. कहाँ पे, अर्थ पे. इसे हम क्या कहते हैं, डोल्टा. ऊपर जा रही है तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट कर रही है. भाई वार्म हवा उठ के ऊपर चली गई, नीचे तो लो प्रेशर क्रिएट करेगी, उसे क्या कहा जाता है, डोल्टा. देन वी हैव सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट.
So the light air rising from the doldrums moves upward towards the pole. It cools down and settle down near the Tropic of Cancer. ये ठंडी हो जाती है, नीचे की तरफ सेटल हो जाती है, ठीक है. Now near the Tropic of Capricorn and create high pressure. These belts are known as horse latitude. इन belts को क्या बोला जाता है? Horse latitude. Now subpolar temperate low pressure belt. When cold polar winds meet warm tropical subtropical winds, जो warm रहते हैं, अब आप देखिए cold tropical wind आई और warm गई subtropical wind, तो क्या होता है, जो warm air है वो तो rise कर जाती है और जो low pressure belts हैं वो form हो जाते हैं. कहाँ? Arctic circle पे और Antarctic circle. Then we have polar high pressure belts. The air is dense and heavy. जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं उन पे जो आपके एयर होते हैं वो डेंस हैवी होती है और वो हमेशा ठंडी होती है. तो ये क्या क्रिएट करती है? हाई प्रेशर एरिया. व्हाट इट्स क्रिएट्स? हाई प्रेशर एरिया. नाउ वी हैव विंड. व्हेन एयर ऑन द अर्थ सरफेस, जब एयर अर्थ सरफेस पे हीट हो जाती है, व्हेन एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज हीटेड, द हॉट एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेस. जो हॉट एयर होती है वो एक्सपेंड करती है और ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर जाती है. बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सराउंडिंग कोल्डर एयर कम्स टू फिल द स्पेस. इन अदर वर्ड, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया. तो एयर कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, राइट. द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड. और जो जेंटल विंड है वो सीन ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट. और जो स्लो विंड होती है वो क्या करती है? ब्लो करती है ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट. इट इज नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे. आपने देखा होगा जब हवा चलती है बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, अम्ब्रेला को कैरी करना, वो उड़ जाता है, राइट. सो इट इज डिफिकल्ट टू इवन वॉक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड व्हेन द विंड लाइक स्ट्रॉन्ग, बिकॉज व्हाट इट्स डू, इट्स अपरूट द ट्री. भाई जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है, स्ट्रॉम आता है, तो वो ट्रीज वगैरह को भी अपरूट कर देता है. बहुत बार क्या होता है, बिल्डिंग्स वगैरह भी कोलैप्स्ड हो जाती है. Since differences in air temperature routinely prevail over oceans, water body, land masses, as well as marked off from each other, and there is certain pattern of high and low pressure over the earth. Consequently, similar pattern is found in the wind system. और आपको similar pattern दिखाई देता है wind system. Now we have types of wind. We have 4 types of wind. We have permanent wind, local winds, variable wind, or so first is permanent wind. These wind blow constantly throughout the year. इनको हम प्लानिटरी भी कहते हैं और प्रिवेलिंग भी कहते हैं, ठीक है. ये क्या करती है? ब्लो करती है कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर. लाइक ट्रेड विंड, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके परमानेंट. आपको याद रखने हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली, ये क्या है? परमानेंट विंड है. ये कंटिन्यूसली क्या करती है? ब्लो करती है फ्रॉम सब ट्रॉपिकल प्रेशर एरिया टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया एंड आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स. इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ईस्टर्लीज. इनको ईस्टर्लीज भी बोला जाता है. द विंड विच ब्लो इन द टेम्परेचर जोन फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टू सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर एरिया, व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड वेस्टर्लीज, ठीक है. जो आपकी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ क्या करेगी? सब ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ मूव करेगी, तो वो क्या होती है? वेस्टर्ली. नाउ पोलर विंड्स ब्लोइंग इन फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर एरिया टू सब ट्रॉप. जो हाई प्रेशर एरिया, पोलर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ चलेगी, वो क्या होगी? आपकी ईस्टर्ली. नाउ वी हैव पीरियोडिक और सीजनल विंड. दीज विंड ब्लो फॉर अ सर्टेन पीरियड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. These wind change their direction in different season. ये अपने डायरेक्शन को चेंज करती है इन डिफरेंट सीजन. मॉनसून विंड ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड मास इन समर एंड देन फ्रॉम लैंड टू सी इन विंटर. लैंड टू सी तो चलती है विंटर में और सी टू लैंड कब जाती है? आपकी समर में. Then we have local winds. These winds blow only during particular period of day or a year. For example, hot and dry local wind, जिसे हम लू कहते हैं, ये ब्लो करती है ओवर अ नॉर्थ इनलैंड प्लेन्स ड्यूरिंग द समर सीजन इन द मंथ ऑफ मई एंड जून. और जो पीरियोडिक विंड्स होती हैं, सी ब्रीज होती है, लैंड ब्रीज होती हैं, ये ब्लो करती है इन द नैरो कोस्टल बेल्ट. और व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज लोकल विंड्स.
Then we have variable winds. What are these winds? These winds change their direction often. Like we have cyclones and anticyclones. Cyclones are formed by air circulation around a low pressure area. ये एक air circulation बनाता है. Anticyclones, they are formed by air circulation around a high pressure area. Then we have moisture. Water is found on the earth in oceans, sea, gulfs, bay, lakes, ponds, river, and even in soil. The heat from the sun, what it's do, it's convert water into water vapor. और किसके थ्रू करता है? किस प्रोसेस से? Through the process of evaporation, right? The most of the important source of moisture in the atmosphere, it's water vapor. Next is humidity. The amount of water vapor in the atmosphere is called humidity. Temperature that control amount of humidity. Higher temperature cause more. जितना ज़्यादा temperature होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? Evaporation होगा और greater humidity होगी. Then evaporation, changing of water into water vapor due to sun radiant energy. जब water किस में change होता है? Water vapor में. किसके through? Sun की radiant energy के through. और ये किस पे depend करता है? Temperature पे. Which is why evaporation is higher in summer than in winter. जो evaporation होता है वो higher होता है summer में than in winter. Right? Next is condensation. When moisture laden warm air rises upward, it cools, and when air reaches a certain temperature. जब air एक certain temperature पे चले जाते हैं उसको हम dew point कहते हैं, and moisture in the air comes together into droplets. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन. When condensation occur above 0 degree Celsius, water droplets are formed, but when it occurs below 0 degree Celsius, जब 0 degree Celsius से भी कब होता है? तो आपके आइस पैलेट्स, आपने देखा होगा कि बहुत बार मतलब आप जब मॉर्निंग में उठते हैं विंटर्स के टाइम पे तो आपको पानी पानी दिखाई देता है, ठीक है? तो वो क्या है? वो आइस पैलेट्स हैं दैट आर फॉर्म किसके थ्रू? कंडेंसेशन. और इससे क्या फॉर्म होता है? क्लाउड फॉर्म होते हैं. पर्सिपिटेशन, ये क्या है? प्रोसेस है जिससे जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ग्राउंड पे फॉल करते हैं. कब? इन लिक्विड, सॉलिड और फ्रोजन फॉर्म. ठीक है, भाई बर्फ पड़ती है. सो दैट स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज वाटर ड्रॉप्स. ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं. जो हेल स्टॉर्म पड़ते हैं ना, डिजल्स, शीट हो जाती है, स्नो, हेल, ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपके पर्सिपिटेशन. Then we have rain. Rainfall and other form of precipitation take place only when air reaches the saturation point. जब air अपने एक saturation point पे reach कर जाती है, right? So that air is full of moisture and is unable to hold it at that temperature. ठीक है, उसको moisture होता है तो उसको hold नहीं कर पाती है. We have different types of rainfall. We have orographic, relief और convectional and cyclonic. साइक्लोनिक रेनफॉल आपका ऐसा होता है, ऐसे साइक्लोन के फॉर्म. ठीक है. कन्वेक्शनल क्या होता है? आपके क्लाउड्स फॉर्म करता है. नाउ ऑर्गेनिक रेनफॉल, जब माउंटेन्स और हिल्स दे कम्स इन द पास. देखो कोई आपकी विंड जा रही है, ठीक है, कोई मॉइस्चर लेके विंड जा रही है और आपका क्या पड़ रहा है? जैसे ऐसे जा रही है और आपका कोई माउंटेन पड़ रहा है या हिल पड़ रहा है, तो उस फोर्स की वजह से वो असेंड हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाती है. ठीक है. और क्या होता है? जो एयर मास है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाते हैं और नीचे की तरफ ठंडा हो जाता है. ये प्रोसेस होता है. और यहाँ पे जो बारिश होती है, जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और जो बारिश होती है वो कौन सी होती है? ऑरोग्राफिक रेनफॉल. ठीक है. देन वी हैव कन्वेक्शनल रेनफॉल, कॉमन इन प्लेसेस विद इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट. यहाँ पे इंटेंस हीट सरफेस की वजह से जब डे में क्या होता है कि जो हीटेड एयर है वो राइज कर जाती है. जब एयर हीटेड होती है वो राइज कर जाती है और वो क्या फॉर्म करती है? क्लाउड फॉर्म करती है. ठीक है, कन्वेक्शनल करंट के थ्रू वो क्लाउड फॉर्म करती है. जैसे ही क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो क्या होता है? फिर बारिश के फॉर्म में नीचे होती है. बारिश बहुत, आप देखेंगे कि बहुत मोटी होती है, पतली नहीं होती, बहुत मोटी होती है. नाउ the ascending hot and humid air current causes condensation resulting in heavy rainfall for a short duration.
Such a rainfall is also accompanied by thunder and lightning. बारिश के साथ साथ आपको थंडर आवाज सुनाई देती है ना, बिजली चमकती है, बहुत तेज आवाज आती है. Then we have cyclonic rainfall. This type of rainfall takes place when cold air mass and warm air mass strike each other face to face. As cold air is denser, ये close रहती है किसके, to the ground. While जो warm air है वो rise कर जाती है. कहाँ, above, as it rises it expands and cool. और इससे रेनफॉल होती है. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज सी. ये आपको जहाँ पे ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. रेनफॉल इज वेरी यूजफुल एज इट brings fresh water on the earth's surface. It is needed for the survival of human beings, animals and plants. More rainfall cause flows and less rainfall can cause drought. देखो रेनफॉल क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Whether plants, animals and human beings, everyone needs rain. ठीक है. देखो क्रॉप्स, अगर रेनफॉल नहीं होगी तो हमारे क्रॉप अच्छे से उग नहीं पाएंगे. ठीक है. इरिगेट करने के लिए, फील्ड को इरिगेट करने के लिए भी हम रेन का यूज़ करते हैं, राइट. अगर ज़्यादा बारिश होगी तो वो फ्लड कॉज कर देगी, एंड इफ देयर इज नो रेन इट विल कॉज ड्रॉट. नाउ रेनफॉल इज मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट रेन गॉड. इसमें एक ग्रेजुएटेड बॉटल होती है जिसमें फनल होता है. इसको हम कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, और ये ड्रिजल, स्नो, स्लीट और हेल फॉर्म करती है, राइट. देन इज वाटर. इट इज द मोर प्रीशियस रिसोर्स. वाटर क्या है? वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑन अर्थ एंड इट इज नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग बींग्स के लिए. वी यूज वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेज, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड मोर एक्टिविटीज. प्योर वाटर को अगर आप देखेंगे कि प्योर वाटर तो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कोई भी इसमें स्मेल नहीं होती है. द पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड विद वाटर, उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. वाटर आपको कहाँ कहाँ मिलता है? ओशन में, सीज में, लेक्स में और रिवर में. एंड द स्नो एंड आइस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्फेयर. 71% of the earth's surface is covered by water. Has great capacity for absorbing heat. The circulation of water help in distribution of heat. Water has a great solvent power in transforming a soluble mineral into organic form. और water जो है वो essential है for the survival of plant, animals and human. ठीक है. जो आपका water है वो essential है किसके लिए? Survival के लिए, plants के, animals के और human being. Then we have water cycle. Water is continuously moving from the earth's surface into the atmosphere and back again to the earth's surface. So water from different water bodies reaches atmosphere through evaporation. किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म. ड्यू टू लॉस ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर, जो प्रोसेस है आपका कंडेंसेशन का वो होता है, एंड वाटर वेपर इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स. वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर ड्रॉप्स में. और जो आपकी वाटर साइकिल होती है उसकी कोई बिगनिंग नहीं होता, ना ही कोई एंड होती. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर वाटर बॉडीज. वी हैव डिफरेंट वाटर बॉडीज. So water body is covered 71% of the earth. Southern hemisphere में ज़्यादा water है and there is less land than northern hemisphere. However, distribution of land and water bodies changes slowly. और जो tectonic process है, जो tectonic plates जो आके मिली थी और जब वो टकराती हैं तो एक क्या फॉर्म करती है? माउंटेन जैसी चीज़ फॉर्म करती है. उससे आपके क्या बने थे? माउंटेन्स बने थे, राइट. Spells of cold climate causes large quantities of water to freeze. This lowering the sea level and exposing new lands. जो oceans हैं वो कितना काउंट करते हैं? About 97% of to have been used for trade and transport. The major water bodies found on land are rivers, lakes and glaciers. जो major water bodies हैं जो आपको land पे देखने को मिलते हैं वो है आपके river, glaciers and lakes. They hold only a small percentage of water on the earth. River influence human life to a great extent. They provide water for drinking, irrigation, power generation. They also serve transport route. ये आपको transport route भी provide करते हैं. देखा ना, हम trade वगैरह करते हैं ship वगैरह से. Then we have fresh and saline water. Most of the saline water of the world is famous in oceans and seas. Sea water contains dissolved mineral. Almost all known minerals are found to some extent in sea water, right? So, but the most important are sodium and chlorine. The ocean water bodies erode the crystal rock जो present होती है surface of the earth पे, और ये क्या carry करती है? Salt of these rocks to sea. जो salinity है ocean की water की वो किस पे depend करती है? Upon the extent of evaporation. और जो volume है fresh water की उसको हम add करते हैं ocean water.
Then we have circulation of water in ocean. So unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. Ocean water जो होता है वो हमेशा किस में मूव करता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करता है. एंड द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशन क्या फॉर्म करता है, टाइड्स. जब वर्टिकल मूवमेंट करता है तो टाइड फॉर्म करता है, और जब हॉरिजॉन्टल करता है तो एक प्रिवेलिंग विंड्स और आपके डिफरेंसेस होता है टेम्परेचर की सैलिनिटी में, और वेरिएशन होता है सी में. Attraction of the moon and the sun, the movement that occurs in ocean can be categorized into three parts: waves, currents and tides. Now let's study what is wave. Wave क्या होता है? When the water on the surface of the ocean rises and falls. जब water ऐसा करके rise कर रहा है और alternatively fall कर रहा है तो उसको हम waves कहते हैं. They are caused in the open sea by the force of wind pushing against the surface. And the surface water rises and fall in the crest and true. The highest point of the wave is called crest और the lowest point is called true कहते हैं. जैसे ये है, ये तो आपका क्या हो गया, crest हो गया, और जो lowest point हो गया वो true. Right? Here it is shown also. I will show you over here. देखो, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वो क्रेस्ट है, और जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है, आपका ट्रू है. राइट? सो द शेप एंड साइज ऑफ द वेव वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपकी स्पीड ऑफ द विंड पे. ऑन काम डेज द वेव्स आर स्मॉल, बट ऑन विंडी डेज वो क्या करती है, लार्जर होती है. सो ड्यूरिंग स्टॉर्म्स वेव्स में राइज टू ग्रेट हाइट एंड बिकम डिस्ट्रक्टिव, बट एज दे रीच द कोस्ट देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस, और जो डेप्थ है वाटर की वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, और जो हाइट है वेव की वो क्या करती है, इंक्रीज करती है. राइट? नाउ tidal waves are tsunamis. Tsunami in a Japanese word tuzu means harbor and namis means waves. What are they called? They are called harbor waves. So they get destroyed whenever there is a tsunami, and tsunami is the movement of a large mass of sea water. किसकी वजह से? Due to displacement of the sea floor. Tsunami waves can be generated by undersea earthquake, volcanic eruption or underwater landslides. The undersea earthquake displaces sea floor, which in turn causes a large mass of water on the surface to move. और वे क्या create करते हैं? एक huge waves create करते हैं जो क्या होती है, जो 700 किलोमीटर लॉन्ग होती है. अब वायलेंट सबमरीन वॉल्केनिक इरप्शन ये करती है, वाटर को लिफ्ट करती है ऊपर की तरफ, और एक एक ह्यूज वेव फॉर्म करती है. क्या फॉर्म करती है? ह्यूज वेव. In the open sea, the height of tsunami may be about 1 meter, but its speed can be from 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर. जो स्पीड ऑफ सुनामी है वो रिड्यूस करती है क्लोज टू द शोर, बट इट्स हाइट्स इंक्रीजेज. द सुनामी ऑफ 2004, जो 2004 में सुनामी हुई थी, इट इज कॉज डैमेज इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, और जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार का वो सबमर्ज हो गया था. ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है वो क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था इस सुनामी में. एक अंडरसी अर्थक्वेक भी आया था 26 दिसंबर 2004 में, इंडोनेशिया में आया था. वो 9.0 मैग्नीट्यूड का था. राइट? देन वी हैव ओशन करंट्स. The water in the ocean is constantly and regularly moving from one part of ocean to another. ठीक है, when streams of water are flowing regularly on the surface of the ocean in a defined direction, it is called ocean current. The speed of the ocean current कितनी होती है? is about 5 kilometer to 10 kilometer per hour. The various factors that cause ocean current are called rotation of the earth, difference in the temperature, salinity of ocean water, palatory winds और shape of the land mass. ये कुछ factors हैं जो क्या cause करते हैं ocean current. और the ocean currents move swiftly with the speed of movement of water varying from about 5 to 10 km per hour. At some places, the surface water move at slower speed, and broad, slow moving mass of water are called drifts. उन्हें क्या बोला जाता है? Drifts बोला जाता है. Now you can see these are the ocean currents. ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है, ये मिनिस्ट्रल ईस्टर है, ये लॉन्गिट्यूडनल है,
ये आपकी पेरू की, and this is Brazilian current, this is Venezuela current, right? These are the different ocean current that you can see over there. Now, on the basis of temperature, ocean current can be classified into two. We have warm ocean current and cold current. Now, what are warm? First of all, I will tell you about some warm currents of Pacific Ocean and some cold current of Pacific Ocean. Like we have North Equatorial Current, North Pacific Current, Kuroshio, South Equatorial और East Australian Current. ये सारे क्या है आपके warm current. कोल्ड करंट पे आपके कैलिफोर्निया, ओशियो, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और पेरू करंट, ये आपके क्या है सारे कोल्ड करंट है. जो ऊपर से आ रहे हैं वो वार्म है और जो नीचे से जा रहे हैं वो कोल्ड करंट्स है, राइट. देन वी हैव अटलांटिक ओशन. इन अटलांटिक ओशन वी हैव नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, साउथ इक्वेटोरियल करंट और ब्राजीलियन करंट. देन इन कोल्ड लैब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैनरी, वेस्ट विंड, बेंगुएला और आपका फॉकलैंड. ये क्या है आपके कोल्ड करंट हैं जो आपको अटलांटिक ओशन में. देन करंट ऑफ इंडियन ओशन, नॉर्थ इक्वेटोरियल, मॉनसून ड्रिफ्ट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और मोजाम्बिक करंट. कोल्ड की अगर हम बात करें तो कोल्ड में आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट. जो ओशन करंट्स है दे आर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बाय रेजिंग और लोअरिंग द टेम्परेचर को रेज भी करते हैं और कम भी करते हैं. Then when warm and cold currents meet there is plenty of fish food. देखो जहाँ पे आपके cold और warm current दोनों आके मिलेंगे वहाँ पे plankton ज़्यादा मिलता है. मतलब आपको जो fish food है वो देखने को ज़्यादा मिलेगा. वो ground fish rich fishing ground होता है. Meeting of warm and cold current leads to heavy condensation. और यहाँ पे intense fog भी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे shipping की problem हो जाती है. Then we have tides. In 24 hours the surface of sea water rises and falls towards. ये जो पीरियोडिक रेगुलर राइज और फॉल है लेवल ऑफ सी में, इसको हम टाइड्स कहते हैं. एंड द राइज ऑफ वेव्स टुवर्ड्स द कोस्ट, इसको हम हाई टाइड कहते हैं. और जब फॉल होता है, रिट्रीट होता है टाइड्स का, ओशन वाटर का कोस्ट, उसको क्या कहा जाता है, लो टाइड. इट इज नोन एज लो टाइड. नाउ वी हैव कॉजेज ऑफ टाइड. हाउ आर टाइड्स कॉज्ड? सो द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून कॉजेज टाइड एंड द सन इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. ऑन कॉन्ट्ररी जो मून है वो बहुत ही क्या है, पास है. ड्यू टू विच वाटर इज अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून देन द सन. द वाटर बीइंग लिक्विड इज अफेक्टेड मोर देन वाटर सन. द पार्ट ऑफ वाटर विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मून, इट इज पुल्ड अप and the rise in water level is a tide. The tides are produced at 2 points simultaneously. First at the place just in front of the moon and second at the place just opposite side of it. The rise of water level at the second place is due to the fact that moon slightly attracts the solid earth. जो moon है वो किसको attract कर रहा है, solid earth को. Now at the time there are two tides at two different places on opposite side. Due to the rise of water level at 2 points there occurs fall of water level. And इस fall को क्या कहा जाता है, low tide. In oceans low tides also occur simultaneously at two places on opposite sides. A place experiences two high and two low tides in 24 hours. Then we have different types of tides. Depending upon the height, we have spring tide and neap tide. Spring कब होती है? On the full moon and new moon, the sun, moon and earth. जब ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो आपको क्या होती है, स्प्रिंग टाइड. Then we have neap tide. If we talk about neap tide, when the gravitational pull of the sun and the moon act at right angle to the earth center, जब वो right angle पे क्या करते हैं, act करते हैं, और force of attraction at opposite to each other, इससे क्या होता है, स्मॉल राइज होता है ओशन वाटर. और इस तरीके की टाइड को क्या कहा जाता है, लीप टाइड. ये क्यों होता है? इट हैपन्स व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर और इज द 8th डे आफ्टर द फुल मून और न्यू मून. उस दिन आपको कौन सी टाइड देखने को मिलती है, लीप टाइड. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड्स. ड्यूरिंग द हाई टाइड जो डेप्थ ऑफ वाटर है एट द माउथ ऑफ सम रिवर वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. सो there are tides helps to clear the sediment deposit over their beds और prevent the situation of harbor. जो harbor के situation है उसको prevent करता है.
The fishing industry is held by the rhythm of tides. During high tide, fish come near the coast, और जो fishermen हैं, they mostly sail out to the open sea. So during low tides and return to the coast with high tides. The energy of the tide is used to generate electricity. We have tidal power station जो आपके UK, Canada और France और Japan में, right? These are some terms to know. You may study them. Our chapter has been completed. Now we will start with the exercise of the chapter. Now first is tick the correct option. Now rainfall is measured with an instrument called. Rainfall को हम measure करते हैं, instrument है जिसका नाम है rain gauge. The subtropical high pressure belts are known as, इनको क्या कहा जाता है, doldrums. Drizzle and sheets are formed from, drizzle और sheets किससे form होते हैं, precipitation. Which of the following gas protect us from harmful rays? That is ozone. Dash rainfall is common in equatorial region. जो equatorial region होते हैं, इस पे किस तरीके की rainfall होती है? That is your convectional rain. The layer of atmosphere that protect us from ultraviolet radiation of sun, that is stratosphere. Rainfall, snowfall, sleet and hail, they are together known as, what are they together known as? Precipitation. Dash is used to measure pressure of the air. Air pressure को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? Barometer. Now write T for true and F for false statement. Temperature are higher in polar regions. It's true. The water cycle has no beginning, no end. It's true. Now water is essential for life. It's true. The energy of the tides is used to generate electricity. It's true. Now answer the following question. What are tsunami, tidal waves and describe their propagation and way of destruction? कैसे कैसे destruction होता है? What are its propagation? That you have to write. How is variation? आपको atmospheric pressure जो cause होता है उसका variation बताना. How are clouds form and how does rainfall occur? Clouds कैसे form होते हैं, कैसे कैसे rainfall होती है, convectional होती है, cyclonic होती है, ठीक है. ऐसे आप different rainfall के बारे में बताएंगे. What is meant by weather and climate? मैंने आपको difference बताया. Weather day to day changes होते हैं, climate सेम रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट आर ओशन करेंट्स और क्या फैक्टर कॉज करते हैं? व्हाट डज द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स? यू हैव टू टेल. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, वी हैव डन द एक्सरसाइज. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.